So today we'll be starting with the fourth chapter, that is linear equation in two variables. Okay. Till 8th standard we have studied linear equation in one variable. For example, if you are given x plus 1 equals to 0. So we need to find x equals to 0 minus 1, x equals to minus 1. Okay, the equation which consisted of one variable, that was linear equation in one variable. Now here we will be studying about equation in two variables. For example, if two people they score, if example given on your page number 67, that is if two batsmen together scored 176 runs. So how to form this equation? So let runs scored by one batsman be x. Now in one variable what we used to do was कि scored by other batsman be dash minus x. Okay, but here if we are talking about two batsmen, then here we need to take two variables. So together they make how many runs? 176 runs. So here we get two variables. So this type of equation is known as linear equation in two variables. When your equation contains two variables, that is known as linear equation in two variables. For example, if I take p plus q equals to 76, okay, 1.2s plus 3t equals to 5, u plus v equals to 9/2. So here you can see that we have two variables, two things whose value is unknown. So such type of equation is known as linear equation in two variable. Now what is the standard form of linear equation in two variables? How do we write linear equation in two variables? Is ax plus by plus c equals to 0. A, b and c are the constants. X and y are your variables. So ax plus by plus c equals to 0. For example, if I give you equation 2x plus 3y equals to 7. So you would be asking, ma'am, इसमें c तो नहीं है. So what we will be doing is 2x plus 3y minus 7 equals to 0. So यहाँ पे आपका a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 3, c क्या हो गया -7. So this is your standard form of linear equation in two variables. How to find the solution? We will be studying in class 9. We will be only studying the standard form and the concepts related to it. Okay, see example 1. Write each of the following equation in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. So 2x plus 3y equals to 4.37. You can write this equation as 2x plus 3y minus 4.37 equals to 0. Now हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं. तो व्हाट वी विल गेट? a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू माइनस 4.37. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन x माइनस 4 इक्वल्स टू √3y. सो ये क्या हो जाएगा? x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है. तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस √3 and c equals to -4. Similarly 4 equals to 5x minus 3y. तो अब मैं 4 को इधर ले जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 0 equals to 5x minus 3y minus 4. So a equals to 5, b equals to -3, c equals to -4. Understood? Okay. Now see example number 2. Write each of the following as an equation in two variable. अब यहाँ पे आप देखो तो आपको x इक्वल्स टू -5 दिया है, आपको दिया है x इक्वल्स टू -5. तो मैं इसमें वन वेरिएबल तो है, तो दूसरे वेरिएबल की जगह मैं क्या लिख दूँगी? x प्लस 0y इक्वल्स टू -5. हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट. जो भी वेरिएबल हमारे पास नहीं है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 0. ओके, क्योंकि 0 से कोई भी उसका वैल्यू चेंज होगा नहीं. 0 मतलब वो टर्म है ही नहीं. जैसे y इक्वल्स टू 2 दिया है तो मैं क्या लिख दूँगी? 0x प्लस 1y इक्वल्स टू 2.
या फिर अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो 0x + 1/-2 = 0. इट इज़ अप टू यू. अगर कांस्टेंट हमारा =2 के बाद आता है देन ऑल्सो इट इज़ ओके. कांस्टेंट इक्वेशन से =2 से पहले आता है देन ऑल्सो इट्स ओके. बस वेरिएबल्स 2 होने चाहिए. ठीक है. सीइंग दी एक्सरसाइज 4.1. सी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. सो मैं क्या ले लूँगी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू y. ठीक है. ये हमें दिया हुआ भी है नीचे. देखो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी टेकन एज x एंड पेन टू बी टेकन एज y. तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब कि x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. तो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. रीड करते जाओ, इक्वेशन बनाते जाओ, दैट विल बी वेरी इजी. अगर आप पूरा क्वेश्चन रीड करके फिर इक्वेशन बनाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा. इसलिए मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि मैं रीड करती जाती हूँ और इक्वेशन बनाती जाती हूँ. तो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. हियर ऑल्सो वी हैव टू डू द सेम एज वी डिड इन एग्जाम्पल कि आपको ax + by + c के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है एंड a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके. तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 10th में आएगा. बेटा मेथड 10 में आएंगे. हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं वो अभी हम सीखेंगे. जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे रखा है x + 2y = 6. ठीक है. तो मैं एज्यूम करती हूँ लेट x = 0. तो y क्या हो जाएगा, 0 + 2y = 6. सो 2y = 6 एंड y = 3. राइट. सो जब भी मैं x की वैल्यू 0 ले रही हूँ तो मुझे y क्या मिल रहा है, 3. सो ये आपका हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम एक एज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे सेकंड वैल्यू हमें अपने आप मिल जाती है. अब देखो, whenever you put a value of x and you get a value of y, तो उस इक्वेशन के होते हैं infinitely many solutions. See, whenever there is no end to different solution of linear equation in two variables, so this type of linear equation is known as this type of linear equation has infinitely many solution. जब भी आप x की वैल्यू पुट करोगे और आपको y का आंसर मिलता रहेगा तब वो इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है. और सपोज अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हो गया 0 सॉल्यूशन. और इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमेशा ये होगा ही, जब आप एक की वैल्यू डालोगे हमेशा दूसरे की वैल्यू मिलेगी. यूनिक सॉल्यूशन और 0 सॉल्यूशन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स सिर्फ एक आंसर आएगा और 0 सॉल्यूशन मतलब आंसर आएगा ही नहीं. वो हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में. फॉर 9th स्टैंडर्ड वी विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. जो भी आपको इक्वेशन दी होगी जब भी आप उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू डालोगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमेशा आएगी ही आएगी. जैसे कि आप देखो ये इक्वेशन एग्जाम्पल 3, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6. यू आर गिवन x + 2y = 6. इसके आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट में मैं क्या एज्यूम कर लेती हूँ, लेट x = 0. ओके. सो क्या हो जाएगा, 0 + 2y = 6. सो y = 3. तो मेरा x, y कितना आ गया, 0, 3. ये आ गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन. सेकेंड सॉल्यूशन के लिए कुछ और एज्यूम कर लो. फॉर एग्जाम्पल आई टेक लेट x = 2. मैंने x = 2 लिया तो ये क्या हो गया, 2 + 2y = 6. 2y = 4 क्योंकि 2 मैं इधर ले गई तो y की वैल्यू कितनी हुई, 2. तो ये क्या हो गया, x, y = 2, 2. ये आ गया आपका सेकेंड सॉल्यूशन. ठीक है. फिर मैं क्या करती हूँ, लेट x = 4. ओके. मैं जानबूझ के ऐसे नंबर ले रही हूँ जो डिवाइड हो जाए ताकि आंसर पॉइंट में नहीं आए. आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4. ठीक है. अब मैं x = 4 लूँगी तो क्या हो जाएगा, 4 + 2y = 6. सो 2y = 2. तो y की वैल्यू कितनी आई, 1. सो आपका x, y क्या हो गया, 4, 1. यह आया आपका थर्ड सॉल्यूशन.
अब फोर्थ के लिए मैं क्या लेती हूँ, लेट x इक्वल्स टू 6 ले लेती हूँ, ठीक है। तो 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो 2y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो आपका x कॉमा y क्या आ गया, 6,0। ये आ गया आपका फोर्थ सॉल्यूशन। सो इजीली मैंने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। एक की वैल्यू सपोज करो, दूसरे का आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें आप सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करोगे, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू x की मैंने सपोज किया, y की भी कर सकते हो, किसी भी एक की वैल्यू आप एज्यूम करोगे तो आपका दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट इज़ योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और देखो इतने सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, मतलब ये कौन इस इक्वेशन का क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ओके। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मोस्ट ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आंसर ही आता है। अब देखो ये एग्जाम्पल, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच। तो हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू 0 ले ली तो y का आंसर आ गया, फिर y की वैल्यू 0 ले ली तो x का आंसर आ गया। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, दोनों की वैल्यू एक एक बार 0 ले लो तो दूसरे का आंसर आ जाएगा, सबसे ईजीएस्ट चीज़। सेकेंड ने भी यही किया, पहले x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी अभी आप सपोज x की वैल्यू कुछ और लेते हो तो यहाँ y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो ऐसे करके आपको सब में जितने सॉल्यूशन पूछे उतने फाइंड करने होते हैं। अब देखो जैसे आपका थर्ड एग्जांपल है 3y इक्वल्स टू 4, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या किया मैंने, पहले x की वैल्यू 0 ली तो y का आंसर आ गया, फिर x की वैल्यू 1 ली तो भी सेम ही आंसर आ रहा है। आप x का कितना भी लिखिए, लेकिन अपने पास 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। आपको जितने सॉल्यूशन पूछे ना उतने सॉल्यूशन आपके पास आने ही चाहिए। नाउ सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू, y इक्वल्स टू 3x फर्स्ट, दोनों है तो क्या आएगा इसमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि आप x की कितनी भी वैल्यू लोगे आपका y का आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन टू दिस और नॉट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x की वैल्यू डालेंगे या फिर हम दोनों वैल्यू डालेंगे और हमारा RHS आना चाहिए। जैसे कि देखो आपको फर्स्ट दिया है, जैसे कि आपको इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 0,2, ठीक है। तो ये 0x में 2 इसमें डाल के देखो आपका आंसर RHS आता कि नहीं आता है। LHS लो, x माइनस 2y, 0 माइनस 2 इंटू 2, तो 0 माइनस 4, आंसर क्या है -4। दैट इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट ये इक्वेशन के नहीं है। सेकंड देखो 2,0, ठीक है। LHS क्या है हमारे पास, x माइनस 2y, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो गया, 2 माइनस 0 2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड देखो 4,0, LHS है हमारे पास x माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज़ 4, दैट इज़ इक्वल टू RHS, मतलब कि ये सॉल्यूशन है। सिमिलरली चेक फॉर अदर 2 ऑल्सो कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं। चलो फोर्थ वाला मैं करके दिखा देती हूँ, कन्फ्यूज़ हो गया। √2, 4√2, LHS क्या है हमारे पास, x माइनस 2y, x क्या है √2 माइनस 2 इंटू 4√2, ओके। क्या हो जाएगा √2 माइनस 4 2 सा 8√2, ओके। अगर मैं दोनों में से √2 कॉमन निकालूँ, 1 माइनस 8 बचेगा, दैट इज़ √2 इंटू -7, -7√2, मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। और लास्ट वाला चेक करें तो लास्ट वाले में क्या ले लेते हैं हम, LHS इक्वल्स टू x माइनस 2y, दैट इज़ 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 दैट इज़ -1, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, दैट इज़ 4,0। अंडरस्टूड। अब लास्ट वाले में भी यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो आपको x की वैल्यू डालनी है, y की वैल्यू डालनी है, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1, कितना हुआ 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 दैट इज़ 7। तो आपकी k की वैल्यू क्या आई 7। दिस इज़ योर
आंसर. सो वी विल बी सॉल्विंग 4.1 एंड 4.2 बाय आवरसेल्व्स. मैंने यहाँ पे आपका डिस्कस किया है. स्टिल यू नीड टू सॉल्व इट वंस अगेन. विल मीट इन लेक्चर नंबर 2. बाय बाय.